السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایک مہینہ پورا ہونے کے بعد ریونت ریڈی نے اپنی میعاد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی وزیر تجارت و صنعت پیوش گوئل نے کہا ہے کہ ملک دو اہم بنیادی باتوں یعنی عورتوں کی قیادت میں ترقی اور ہندوستان کو کرپشن سے پاک بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بی جے پی کے قومی صدر ڈی کے ارونا نے کالیشورم پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست کے کئی ضلعوں میں اگلے 24 گھنٹوں صبح کے وقت کہیں کہیں کوہر جیسی حالات رہنے کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ایک مہینہ مکمل کرنے کے بعد ریونت ریڈی اپنی میعاد پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ حکومت کا مہینہ پورا ہونے پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے عوام کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کی کوششوں کو نمایاں کیا اور عوام خدمت کے لیے ان کے جذبے کو واضح کیا۔ انہوں نے بات صاف کی کہ ان کا رول عوام کے خدمت گزاروں کا ہے، حکمراں طبقے کا نہیں۔ انہوں نے ایک مہینے کی حکومت کے دوران پیدا ہونے والے اس احساس کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے محروم طبقات، نوجوانوں اور لڑکیوں میں دیکھی جانے والی خوشی کا ذکر کیا اور کسانوں کی مدد کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ نے وعدہ کیا کہ وہ ریاست کو ڈرگ سے پاک بنانے، صنعتی ترقی لانے، سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے عہد کو دہرایا اور سستی شراب کی دکانیں بند کرنے کا فیصلے حوالہ دیا۔ جی ایچ ایم سی کو سوچھ سرویکشن 2023 کے قومی ایوارڈ کے لیے چنا گیا۔ مرکزی وزارت ممکنہ و شہری ترقی کی طرف سے جی ایچ ایم سی کو دعوت نامہ روانہ کیا گیا کہ نئی دہلی میں اس مہینے کی 11 تاریخ کو ہونے والے پروگرام میں شرکت کرے۔ سوچھ سرویکشن 2023 ایوارڈ کے مطابق قومی درجے کے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی کے شہروں اور ریاستی زونل درجے کے 1 لاکھ سے کم آبادی والے شہروں کو ایوارڈ کے لیے چنا جائے گا۔ جی ایچ ایم سی کے نالوں سے ضائع ہونے والی پانی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ماحول کو نقصان پہنچائے بغیر ایس ٹی پی کے ذریعے چھوڑا جا رہا ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو 5 اسٹار ریٹنگ حاصل ہوگی، لیکن فی الحال کچرے سے پاک شہر کی فہرست میں 3 اسٹار درجہ رکھتا ہے۔ بی جے پی کی قومی نائب صدر ڈی کے ارونا نے کالیشورم پروجیکٹ کو ملک کا سب سے بڑا اسکام قرار دیا اور کرپشن کے الزامات کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد میں آج پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ارونا کالیشورم پروجیکٹ کی سی بی آئی تحقیقات کے لیے سابقہ مطالبے کی یاد دلاتے ہوئے کانگریس کی خاموشی پر سوال کیا۔ انہوں نے عدالتی تحقیقات کی وجہ سے دیری پر تنقید کی اور اس بات پر زور دیا کہ اگر کانگریس حکومت سنجیدہ ہے تو صرف سی بی آئی تحقیقات سے ہی کالیشورم پروجیکٹ کے بارے میں سچ سامنے آ سکتا ہے۔ ارونا نے پچھلی بار بی آر ایس حکومت پر الزام لگایا کہ اس نے پروجیکٹ کا ڈیزائن دوبارہ بنانے کے نام پر اس منصوبے کی لاگت کو اندازاً 63,000 کروڑ سے بڑھا کر 1.5 لاکھ کروڑ روپے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ جج زیر قیادت تحقیقات سے سی بی آئی چھان بین کی طرح حقائق سامنے آئیں گے۔ شولاپور میں ہندو جن آکروش ریلی کے دوران نفرت پر مبنی تقریروں کے لیے بی جے پی رکن اسمبلی نتیش رانے اور پارٹی کے تلنگانہ کے ایم ایل اے ملون راجا سنگھ کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایک پولیس عہدیدار نے آج یہ بات بتائی۔ یہ ریلی ہفتے کے دن ہوئی تھی جس میں سکل ہندو سماج کے لیڈرز نے شرکت کی۔ تنظیم کے عہدیداروں کا نام ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے۔ جیل روڈ پولیس اسٹیشن کے عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ ریاستی حکومت نے 2050 تک پوری ریاست کے صنعتی ترقی کے لیے ایک میگا ماسٹر پلان پالیسی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کل حیدرآباد میں کنفیڈریشن آف انڈین انڈسٹری کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ انہوں نے مجموعی صنعتی ترقی کے لیے حکومت کے عہد کو دہرایا۔ وزیر اعلیٰ نے صنعتی تنظیم کو یقین دلایا کہ حکومت سرمایہ کاری کے ہر ایک روپے کی حفاظت کو یقینی بنائے گی اور سرمایہ کاری کی گئی رقم کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ سابق گورنر ای ایس ایل نرسمن نے اور ان کی اہلیہ وملا نرسمن نے بی آر ایس کے سربراہ اور سابق وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے آج حیدرآباد کے نندی نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی۔ اس جوڑے نے چندر شیکھر راؤ کی مزاج پرسی کی جو کلہے میں چوٹ لگنے کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے نرسمن نے اور ان کی اہلیہ کا بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ اور دوسرے سینئر لیڈرز نے نندی نگر رہائش گاہ پہنچنے پر استقبال کیا۔ آندھرا پردیش کے نیلور ضلع کے گڈلور منڈل کے گاؤں موچلہ میں آج صبح ٹی ایس آر ٹی سی کی ایک بس نے ایک لاری کو ٹکر دے دی جس سے 2 لوگ ہلاک ہو گئے اور 7 زخمی ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ تلنگانہ آر ٹی سی کی بس نلگونڈا ضلع کے مریال گوڑے سے تروپتی جا رہی تھی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا
जब आरटीसी बस ने पीछे से ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी और आरटीसी ड्राइवर की मकाम पर ही मौत हो गई। एक खातून मुसाफिर 65 साल सीता हादसे में बुरी तरह जख्मी हुई और जीजीएच में इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। हादसे के वक्त टीएसआरटीसी की बस में 30 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। जख्मियों को जीजीएच में शरीक किया गया। कुमरम आसिफाबाद जिले के कागज नगर के जंगल में एक 1.5 साला शेरनी मुर्दा पाई गई। जंगलात के अहदेदारों में शुमार जानवरों के 2 डॉक्टर्स को फौरी तलब किया गया, जिन्होंने पता लगाया कि जानवर की गर्दन और पेट पर चोट के निशान है। उसके मुंह में बाल पाए गए जो किसी दूसरे शेर के हो सकते हैं। मौत की वजह मालूम करने के लिए इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है और नमूनों को तस्दीक के लिए भेज दिया गया। समझा जा रहा है कि ये वाक़या शेरों के दरमियान इलाके के बारे में झगड़े का नतीजा हो सकता है। तहकीकात से जुड़े अहदेदारों ने ये बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि मौत लाश मिलने से 3-4 दिन पहले हुई होगी। मुनासिब कागजी कार्रवाई के बाद तरीक़ेकार के मुताबिक लाश को ठिकाने लगाया गया। मरकज़ी वज़ीर तिजारत व सनअत पीयूष गोयल ने कहा है कि मुल्क 2 अहम बुनियादी बातों की तरफ बढ़ रहा है, जो औरतों की क़ियादत में तरक्की और हिंदुस्तान को करप्शन से पाक बनाना है। वो आज तमिलनाडु के चेन्नई में आलमी इन्वेस्टर मीट से इफ्तिताही खिताब कर रहे थे। वज़ीर ने कहा कि मुल्क ने 7.7 तरक्की को देखा है और अफरात-ए-ज़र में काबिल लिहाज कमी लाई गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत और विकसित भारत मजबूत सुतूनों में पोशीदा है, जो 28 रियासतें और 8 मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि हुकूमत ने तिजारत की आसानी को यकीनी बनाया है। उन्होंने नौजवानों से कहा कि वो बड़ा सोचें और हिंदुस्तान को 2047 तक मिलकर तरक्की याफ्ता बनाने के लिए काम करें। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि पिछले साल मुल्क भर के स्कूलों में 2 करोड़ तालिब इल्मों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की सरगर्मियों में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यकजहती को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम शुरू किया था। मरकज़ी वज़ारत तालीम ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में रहने वाले तहज़ीबी एतबार से अलग अलग लोगों के दरमियान राब्ते को बढ़ाना है। हर रियासत और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की दूसरी रियासत और मरकज़ी इलाके के साथ जोड़ी बनाई गई है ताकि लोगों के दरमियान राब्ता हो सके। आदिलाबाद, कुमरम, आसिफाबाद, मंशरियाल, निर्मल, वरंगल, हनमकुंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, दादरी, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक ज़िलों के बाद मकामात पर सुबह के वक्त कोहर जैसे हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात के मरकज़ ने मौसम के बारे में अपनी रोज़ाना की रिपोर्ट देते हुए कहा कि अगले 7 दिन तक रियासत में खुश्क मौसम रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि सबसे कम दर्जे हरारत 14.2 डिग्री सेल्सियस कल रात आदिलाबाद में रिकॉर्ड किया गया। मल्लेपल्ली हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाली अस्मा बेगम ने अपने शौहर सईदुद्दीन अंसारी और अपने ससुराल वालों पर हरासानी और मारपीट का इल्ज़ाम लगाया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में मल्लेपल्ली की रहने वाली अस्मा बेगम ने उसके शौहर सईदुद्दीन अंसारी और ससुराल वालों पर हरासानी और मारपीट का इल्ज़ाम लगाते हुए हबीबनगर पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करवाया। आइए सुनते हैं अस्मा बेगम से इसी की कहानी, इसी की ज़बानी। हस्बैंड और मेरे जो देवर जो बाहर रहते दुबई में और मेरी ननद जो रियाद में रहते उन्होंने हमेशा जब आते मेरे को मारा खिलाते। किस वजह से मार रहे हैं आपको? जी मेरे को मतलब मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरे भाई अच्छे नहीं है, ये हर वो चीज़ से वो लोग हमेशा मेरे को टॉर्चर भी करे और मेरे सास भी मेरे को मारे और मेरे हस्बैंड हमेशा मेरी सास की बात सुन के मेरे को मारते। कितने साल हुआ आपकी शादी के? 7 साल हुआ। आज किस वजह से आया? आज मैं इस वजह से आई क्योंकि हमेशा मैं बर्दाश्त करी क्योंकि ससुराल है, शादी में है, मतलब होता लड़ाइयाँ झगड़े होते, मैं बर्दाश्त करी आज मेरा बर्दाश्त ख़त्म हो गया। हर वक्त ये बार-बार आपको मारने की वजह, टॉर्चर करने की वजह क्योंकि उनको मैं उनको पसंद नहीं हूँ। उन्होंने बोलते कि उनकी सास की मजबूरी की वजह से उन्होंने मेरे से शादी करे, इस वजह से उन्होंने मेरे को हमेशा टॉर्चर करते, कंपेयर करते, दूसरों से कंपेयर करते। तेरे भाइयाँ क्या है, तेरे भाइयाँ ससुरालों का खाते, तेरे भौनैया ऐसे है वैसे है, हर चीज़ जान दो, शादी है ना, बचाना है, बच्चा है, बचाना है, बचाते आज उन्होंने मेरे को हाथ पार करके मेरे को इतना मारे, मालूम है मैं आपको बता नहीं सकती। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 3 महीने, उनको आज ये भी चीज़ उनको मालूम हुई बोल के उन्होंने मेरी सास, जैसा मेरी सास को मालूम हुआ आज उन्होंने उनके बेटे को बोल के मेरे को मारा खिलाने लगाए। उन्होंने जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे थे। तो आप कंप्लेंट करें इसके ऊपर? मैं आज कंप्लेंट करी 7 इयर्स के बाद। मैं आज कंप्लेंट इसलिए करी क्योंकि मेरा सब्र ख़त्म हो गया। कहाँ पे करें कंप्लेंट? ये हबीबनगर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में।
तो ये हर बार होता है आपसे लड़े झगड़े? जी हमेशा हर बार किसी की भी बात रहने दो वो मेरे पे आती, शायद तो- वो मेरी जिठानी की बात रहने दो या मेरे देवरों की रहने दो, किसकी भी रहने दो। आज मैं उनके लिए इसीलिए ये मैं हर तकलीफ को ख़त्म करके आज ये डिसीजन उठाई, क्योंकि अब मैं उनके साथ नहीं रहना चाह रही और मेरे को इंसाफ होना, जितनी तकलीफ उन्होंने मेरे को दी है। बंजारा हिल्स पुलिस ने सिर्फ 24 घंटों में गुमशुदा खातून का पता चला लिया। बंजारा हिल्स पुलिस का बेहतरीन कारनामा, एक गुमशुदगी की शिकायत को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल शेख अब्बास ने सुराख लगाते हुए आंध्र प्रदेश तिरुपति पहुंचकर 24 घंटे में इनका पता चलाते हुए इसे शहर वापस ला लिया। बताया जाता है कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून अपने 2 बच्चों के साथ अपने शौहर को बिना बताए एक शख्स के साथ चली गई, जिसका नाम जिलानी, जो ज़िले कड़पा का बताया जाता है, पहले से शादीशुदा है। इसके बावजूद लड़कियों को अपनी जिनसी हुस्न का शिकार बनाता है और लड़कियों और ख़वातीन को अपना शिकार बनाता है और इनको अपनी मोहब्बत का शिकार बना के इनसे पैसे और ज़ेवरात लूटना इसका पेशा है। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल शेख अब्बास ने 24 घंटे में न सिर्फ इसका पता लगाया बल्कि खातून और 2 मासूम बच्चों को इसके चंगल से छोड़ा दिया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोमिन की ये रिपोर्ट। हैदराबाद के पुराने शहर में नौजवान के कत्ल का वाक़या पेश आया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक मक़तूल की शिनाख्त अफरोज़ के तौर पर की गई, जो तीगल गुंटे के रहने वाले बताए गए। इनके रिश्तेदार ने बताया कि रकमी लेन देन के मसले पर अफरोज़ का इनके साथियों ने मुहरिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया। ये वारदात कल रात काले पत्थर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दाखाने में महफूज करवाया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। 2 साल रात दिन साथ रहते थे। बस उन लोग के नामा क्या है मालूम आपको? एक का नाम गौस बोल के है और दोनों का नाम नहीं मालूम मेरे को। हाउस बोलने वाले क्या रहते? उनके साथ ही रहते थे। नहीं उनका दाना मारी झोपड़ी जी, जो वहीं रहते हैं। की वजह से हमारे बोल के मालूम आपको ये वहीं से कुछ दोस्तान में खरीदा लिए करे बोल के कितने का 1.5 लाख का है करते दिए फिर पैसे दिए थे और तो 50,000 देते थे, आज देने गए मारे उनको। किसे लिए थे पैसे? वो दोस्त के साथ ही, जो 7 दोस्त है। क्या नाम है वो दोस्त का? गौस बोला सो है। अच्छा कितने महीने हो रहा लेके? 2-3 महीने कुछ हो रहा लेके। हाँ जब से चल रही थी घर पे भी आके 2-3 बार लेके उनको, या मल्लापल्ली पे भी आए थे। जब से उनके साथ चल रहा है सब। अच्छा आप लोग देखो जाके वहाँ भी देखे कुछ करो उनके हाथ से। बच्चा छोड़ थे उनको भाई? 4 बेटियां 2 बच्चे हैं उनको। अच्छा एक बच्चे की क्या शादी काम कर रहे करते थे हैं, अफरोज भाई? ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते थे। ऑटो का भी फ्रूट वगैरह करते थे, दोस्तों के साथ रहना करना। हाँ अब बच्ची की शादी हाल में थी, जी ऐसा करे थे उनके साथ के दोस्त। आप लोग इनकी 36 साल है। 36 कहाँ के रहने वाले हो ना मुकामी? ये दानमा दाना की झोपड़ी वहाँ के आता है। जी वहाँ के छोनो। ये कहाँ हुआ वाकया? कहाँ हुआ ये जो आज हुआ ये मारे वहाँ का कहाँ पर मारे? वो साहब ने वाला हम तो मल्लापल्ली के साहब अच्छा क्या नाम है आपको? साढ़े को नाम को अच्छा मैं छोटा साढ़े में से बड़े थे उन्होंने। बस दानमा झुपड़ी में तो कौन सा पी सकता? पीएस का है हमारे साहब अपने को, अपने मल्लापल्ली के है, श्रीनगर लगता हूँ। ठीक है। बाजू पर अलग। कोरटला हल्के में जुवाड़ी भवन में मुनाकिदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कृष्णा राव ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस तरह की इंतजामिया कोरटला हल्का में हो। हल्के बंदी अब तक उनके हल्के में कमीशन के जरिए छापे मारे गए और अफसरान ने भी बदनवानी में हिस्सा लिया। इनका कहना था कि अगर इस तरह के कामों से बचने के लिए ऐसे कोई अहलकार हैं तो अपनी मर्जी से कहीं और चले जाएं। इस संक्रांति के बाद सेल जुवाड़ी रत्नाकरों के ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन नंबर को टोल फ्री नंबर के तौर पर रखा जाएगा। कृष्णा राव ने इस मौके पर कहा कि हम ऐसे अफसरान के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे और देखेंगे कि हल्के में आवाम को बदनवानी से पाक हुक्मरानी फ्राहम की जाती है या नहीं। कृष्णा राव ने कहा कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं आवाम के लिए काम करेंगे। इस प्रेस मीट में ज़िले नायब सदर वसीम, कोरटला सदर टी गंगाधर, नायब सदर अब्दुल्ला नईम सगुराबी और साबिक़ा कौंसलर अब्दुल्ला ख़य्यूम के अलावा दीगर शामिल रहे। कोरटला से मोहम्मद यूनुस की ये रिपोर्ट। इसके ज़िम्मन में जनाब सीएम रेवंत रेड्डी साहब ने खुसूसन तवज्जो देने की ज़रूरत पे बहस की है कि गांजा और क्या बोलते हैं ड्रग्स वगैरह की वजह से नौजवान बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। मैं नौजवान बच्चों से भी इंतज़ार करता हूँ कि वो ड्रग्स और गांजा के ताल्लुक से दूर रहें। ये मुझे मौका दिया गया है। मैं हम तमाम कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। కొత్తగా ఏర్పడ్డ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు సూచన మేరకు అధికారులు ఏదైతే ఉన్నదో పని చేయని అధికారులు వెళ్ళిపోవచ్చని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిజాయితీ పరులు అధికారులు ఇక్కడ పనిచేయాలి. ముఖ్యంగా ఏంటంటే డ్రగ్స్, ఇసుక మాఫియా, గంజాయి మీద చర్యలు తీసుకోవడం చెప్పడం జరిగింది.
అధికారులందరూ కూడా ఎక్సైజ్ అధికారులు కావచ్చు ఇతర అన్ని नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला में मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान का इनेकाद। मोहम्मद अब्दुल रहीम इंचार्ज टैलेंट टेस्ट सदर मुदर्रिस नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला की तला के बमूजिब 7 जनवरी बरोज़ एतवार सुबह 10 बजे तक 1 बजे शहर कोरटला में मिलत टैलेंट सर्च इम्तिहान का इनेकाद अमल में आया। MFERD की जानिब से 10वीं जमात व इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर के तलबा व तलिबात के लिए इम्तिहान मुनाकिद किया गया। वाज़ेह है कि इस इम्तिहान में आला निशात हासिल करने वाले तलबा व तलिबात को नीट CA वगैरह की 2 साला रिहाइश के साथ मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। जुमला 80 तलबा तलिबात ने रजिस्ट्रेशन करवाया। मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में कोरटला में ही सेंटर दिया गया था। शहर कोरटला के अलावा दीगर मकामात के तलबा ने भी इस्तिफ़ादा किया। मोहम्मद आसिफ खान सदर आयटा कोरटला, मोहम्मद फसीउद्दीन शकील जनरल सेक्रेटरी आयटा, मोहम्मद चांद खान साहब टीचर, मोहम्मद वासिक साहब ने इम्तिहानी मरकज़ का मायना किया। सैयद अब्दुल बाकी इदरीस, मोहम्मद आरिफ, सैयद अयाजुर रहमान, मोहम्मद रिशाद ने इन्विजिलेटर की फ़राइज़ अंजाम दिए। कोरटला से मोहम्मद यूनिस की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 7 जनवरी बरोज़ इतवार MFERD मिल्लत फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जानिब से पूरे हिंदुस्तान की सतह पे तकरीबन 165 सेंटर्स में एक मिल्लत टैलेंट सर्च एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें कोरटला शहर के नौनिहाल हाई स्कूल का भी सिलेक्शन किया गया सेंटर के लिए, जिसमें तकरीबन 80 से ज़ायद तलबा जो है आज के इस टैलेंट एग्ज़ाम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये बड़ी खुशनसीबी है कोरटले के शहर के तलबा के लिए कि यहाँ पर सेंटर मिला, वरना गुज़िश्ता सालों के अंदर हमने देखा कि तलबा को इस एग्ज़ाम को अटेंड करने के लिए निज़ामाबाद और निर्मल जैसे दूर दराज मुकामात पर जाना पड़ा, लेकिन इस मरतबा शहर कोरटला के अंदर सेंटर दिया गया। इस बात पर हम MFERD के मशहूर हैं। और वाज़ेह रहे कि ये टैलेंट टेस्ट 10th स्टैंडर्ड के तलबा और इंटरमीडिएट के 10+2 के तलबा के लिए जो है ये कंडक्ट किया जा रहा है। और इसके ज़रिए से इस टैलेंट टेस्ट के अंदर जो भी बेस्ट परफॉर्म करेंगे, अच्छे निशानात के साथ कामयाबी हासिल करेंगे, उनको 2 साल रेसिडेंशियल फ्री कोचिंग नीट और CA और इस तरह के कोर्सेज की दी जाएगी, जिसमें बगैर किसी फीस के वो लोग जो है पूरा अपना कोर्स हाई लेवल की कोचिंग के साथ जो है मुकम्मल कर सकेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सेंटर के अंदर जो तलबा है वो भी इंशाल्लाह आज जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो बेहतर मुज़ाहरा करेंगे। और फिर एक मरतबा मैं जो है MFERD का मशकूर हूँ कि जिन्होंने शहर कोरटला को सेंटर के लिए इंतखाब किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जलसे हुस्न क़राअत व सीरत क्विज़ मुकाबले का सालार मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में इनेकाद अमल में आया। 40 स्कूल्स के बच्चों ने हिस्सा लिया। हैदराबाद एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जलसे हुस्न ख़िरत और सीरत क्विज़ मुकाबले और इनामात की तकसीम सालार मिल्लत ऑडिटोरियम उर्दू मस्कन खिलवत में अमल में आई, जिसमें 40 स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। जनाब ग़ुलाम यज़दानी एडवोकेट साहब ने सदारत की, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब अज़ीम कुरैशी, जनाब सैयद सादत अली, जनाब सैयद अज़मतुल्लाह सरपरस्त आला फाउंडेशन, डॉक्टर हज़बुल्लाह, मुफ्ती मोहम्मद आमिर ख़ान क़ासमी मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मोहम्मद बाक़िर मैनेजिंग ट्रस्टी फाउंडेशन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अल सफ़ा मॉडल हाई स्कूल को इनाम अव्वल और मास हाई स्कूल को इनाम दुवम और सेंट मास हाई स्कूल को तीसरा इनाम दिया गया। आयशा सिद्दीक़ा, मनाजिर आलम, मोहम्मद असदुल्लाह अंसारी को अच्छी कारकर्दगी पर इनाम दिया गया। दूसरा इनाम है मार्च साहिबा को 3000 कैश प्राइज दिया जा रहा है। इन्होंने सिर्फ में इनाम में दुबो क्लास 5 के शेख कुर्बान है। इसके बाद स्कॉलर मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट स्कूल है मुहद्दिस नगर हाई स्कूल क्रिश्चियन हाई स्कूल मॉडल है स्कूल टोली। इसके बाद नेक्स्ट ये स्कूल को सर्टिफिकेट का सिलसिला है।
ताउन की अपील है। हैदराबाद एजुकेशन जारी की तरफ से क्वार्टर बैन किया गया है। ये फाउंडेशन जो है आप सभी हजरात के ताउन से चल रहा है, तो ज़्यादा लोग जो है फाउंडेशन की आप भरपूर ताउन करते हुए जाए। वह क्वार्टर बैन किया गया है और ताउन करके रसीद बज़्म जानिसारा ने मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम माहाना नाते मुशायरे का चंदूलाल बारादरी में इनेक़ाद अमल में आया। शोरा कराम ने कलाम सुनाने की सआदत हासिल की। बज़्म जानिसारा ने मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतमाम माहाना नातिया मुशायरा चंदूलाल बारादरी में मुनक़िद हुआ, जिसकी निगरानी जनाब अहमद मोहिउद्दीन क़ादरी अल जिलानी ने की। इस महफिल में उलमाए कराम शोरा कराम ने शिरकत की। जनाब मेमन हारून अबू बकर दाई महफिल की उम्रे को रवानगी के ज़मीन में इनकी गुलपोशी की गई। सुभान अल्लाह। खुशी फरमा रहे हैं, उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए हारून अबू बकर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। तो सैयद अता फरमाए। माजिद भाई इधर, माजिद भाई जनवरी को हारून भाई जो है अब्दुल्ला की बात हो से पाया है रहमतों का सफर, सुभान अल्लाह, बहुत अजीम है तैबा की वादियों का सफर। IT मुलाजिम के अगवा के इल्ज़ाम में बहन के बेशुमार 5 गिरफ्तार। पुलिस ने सॉफ्टवेयर मुलाजिम के अगवा के इल्ज़ाम में खातून के बेशुमार 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस खातून पर अपने ही कज़न रिश्ते के भाई के अगवा में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। मुलज़िमीन सॉफ्टवेयर मुलाजिम के अगवा और तावान तलब करने के वाक़े में मुलविस बताए गए। साइबराबाद पुलिस ने इतवार के रोज़ ये बात बताई। 34 साल IT मुलाजिम को तावान के लिए अगवा करने वाली बदनाम ज़माना गैंग ने कार में गिरफ्त अगवा कर लिया। यह वाक़या अपने रिश्ते की बहन कज़न के बुलाने पर मुलाजिम के ख्वाजागुड़ा झील पहुँचने के बाद पेश आया। पुलिस ने बताया कि खातून और उसका आशिक आपस में शादी करना चाहते थे। शादी के बाद पुरतय्युर ज़िंदगी के लिए इन दोनों को ज़र कसीर चाहिए था। खातून ने अपने आशिक उसके गैंग लीडर के साथ अपने कज़न IT मुलाजिम को तावान के लिए अगवा करने की साजिश पर तबादला ख्याल किया। कलीदी मुलजिम जो अगवा गैंग का सरगना बताया गया जराइम का रिकॉर्ड रखता है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद रायदुर्गम पुलिस ने हफ्ते के रोज़ 7 के मुलजिम ले 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर इन मुलजिमीन ने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। माबकी मुलजिमीन मफरूर 2 मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। తెలిసిన తర్వాత వీళ్ళుగా 20 lakhs వరకు కూడా వీళ్ళు ఇమీడియట్ గా 20 lakhs ఇచ్చినా మేము వదిలేస్తాం అనేది కూడా వీళ్ళు డిమాండ్. తర్వాత 2 crores నుంచి 1 crore 70 lakhs 1.5 crore 1 crore 50 lakhs 20 lakhs వరకు కూడా వచ్చారు. చివరికి పోలీసుల నుంచి మనకు తప్పించుకునే అవకాశం లేదని తెలుసుకొని ఆ కిడ్నాప్ చేసినటువంటి అతన్ని వదిలిపెట్టి వీళ్ళు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఈ ఎంటైర్ ఆపరేషన్ లో కూడా పోలీసులు 48 hours లో మొత్తం చేంజ్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఎవరైతే దీనికి ప్లాన్ చేశారో సురేష్ అనే అతని మీద ఇప్పటికే 21 క్రిమినల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇదే గ్యాంగ్ ఇంతకు ముందు మన దగ్గర గచ్చిబౌలిలో కూడా అయినటువంటి ఒక కిడ్నాప్ కేసు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, అది కూడా డిటెక్ట్ అయింది. సో ఈ సురేష్ అనేటువంటి అతను ఒక 21 కేసెస్ లో ఉన్నారు. ఈ వెంకటకృష్ణ అనేటటువంటి అతను నిఖిత్కి ఎవరైతే అసిస్ట్ చేశారో వీళ్ళిద్దరూ ఒకే చోట ఎంప్లాయీస్ గా చేస్తున్నారు. ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి ఈ అమౌంట్ కనుక వస్తే మనకి హ్యాపీగా మ్యారీడ్ లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు అనేటటువంటి ఇంటెన్షన్ తో ఇది ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళ మోడస్ ఆపరెండి కూడా తెలిసినటువంటి వాళ్ళనే కిడ్నాప్ చేయటం, వాళ్ళని ఎంతో కొంతకి బెదిరించడం. ఇంతకుముందు గచ్చిబౌలి కేసులో కూడా మనకి ఇనీషియల్ గా 1 crore నుంచి స్టార్ట్ చేసి 2 lakhs తీసుకొని వదిలిపెట్టడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరి మీద కూడా గ్యాంగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తాము. మెయిన్ అక్యూజ్డ్ మీద PD యాక్ట్ కూడా ఇన్వోక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ నెల 4వ తేదీ సాయంత్రం రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో జరిగినటువంటి సుధాకర్ అనేటటువంటి ఎంప్లాయీ కిడ్నాప్ కు సంబంధించినటువంటి మిస్టరీని 48 గంటల్లో సురేందర్ అనేటటువంటి ఎంప్లాయీకి సంబంధించినటువంటి కిడ్నాప్ మిస్టరీని 48 గంటల్లో ఛేదించినటువంటి ఆ రాయదుర్గం పోలీసు స్టేషన్కి సంబంధించిన సిబ్బందిని అందరినీ ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాము. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈ నెల 4వ తేదీ సాయంత్రం 6:30 గంటల సమయంలో కాజాగూడ లేక్ దగ్గర ఈ ఎంప్లాయీని కిడ్నాప్ చేయడం జరిగింది. ముందుగా మనకి డైల్ 100 నుంచి ఇద్దరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమ్మీడియట్ గా మన టీం అక్కడికి రీచ్ అయినప్పుడు ఈమె నిఖిత అనేటటువంటి ఆమె అక్కడ ఉండడం జరిగింది. ఈమెతో పాటు ఉన్నటువంటి अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।